हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना है और सही देखा है और सही जाना है। सबसे बेस्ट पॉपुलर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में यूज़ करने वाले मोबाइल ऐप्स, जो काफ़ी लोगों ने इन ऐप्स के द्वारा पैसा कमा रहे थे, तो कुछ लोग तो ऐसा ही है जो अपने जान तक भी दांव पे लगा देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उस बेस्ट एंड पॉपुलर ऐप्स की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स PUBG प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स। इंडिया में बंद कर दिया गया है। साथ में 118 मोर ऐप्स इंडिया में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना पॉपुलर होने के बावजूद PUBG को क्यों बंद कर दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको उस पॉपुलर गेम का थोड़ा सा हाईलाइट दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने अपने जान भी गंवा दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपने जान भी गंवा दिया है। Unknown Battle Grounds, or PUBG as it's known, has taken the gaming world by storm since its launch earlier this year. With the game soon to be out of early access on PC and hitting the Xbox One shortly, now is as good a time as ever to figure out if it's worth your time. Players are parachuted from a plane onto a large map and start off with no gear aside from cosmetic nades, items and armor which are distributed at random, killing players as you come across them. Sounds easy enough? Every few minutes the game map shrinks, forcing you to relocate to a new area, damaging you until you do. Failing to enter a new safe zone results in death. If you're the last player standing, you're greeted with the phrase winner winner chicken dinner. You get in-game currency and paper. PUBG sounds fantastic. Execution though leaves a lot to be desired. For one, the frame rate is erratic. Even at medium settings on an i5 with 16 gigs of RAM and a GeForce GTX 1070, you can barely hit 45 frames per second at the end. This would not be a problem if it was a constant 45 frames, but frequent dips and stuttering made for an experience that was far from enjoyable. More so when other intensive games scale a whole lot better. What's more is, we encountered situations where the game would push us back to the desktop with no reason whatsoever. Booting it up again would throw us right back into the match we were in. The lack of messaging or information from the game about such an error is disturbing. Coupled with the aforementioned stuttering that impacts traversal and gunplay, and you have a game that at this point should have no business being on PC as a full-fledged release. And there's more. The learning curve is exceptionally steep and PUBG is unwelcoming to newcomers. Reason being, there's no tutorial to ease you in or teach you the game's finer points. Granted, this might change what with the developers claiming they have something in the works to ease newbies in, but until then, it's as bare bones as it gets in terms of game modes, sporting a single one pad. The gunplay is satisfying, and the ever-shrinking map provides an interesting challenge as it results in more frequent chaotic encounters. But between landing a headshot and sprinting to the nearest safe zone are minutes of silence, rummaging through houses and buildings in search of equipment. That is, of course, if you haven't been punched in the head to death by another player already. दोस्तों, पूरी लद्दाख में चाइना के साथ सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकप्रिय ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स PUBG सहित 118 ज्यादातर चाइना मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मैं कुछ बेहतर ऐप्स की लिस्ट स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कहा गया है कि भारत की अखंडता, भारत की रक्षा, राज्यों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए इन एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिएगा, क्यों इतना पॉपुलर गेम होने के बावजूद PUBG को बंद कर दिया गया है। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स डेवलपर PUBG ग्रुप ने स्ट्रीम पर सभी PUBG आइटम्स की व्यक्तिगत ट्रेडिंग्स है। इन आइटम्स को हटा दिया गया है। इसका कारण यही है कि व्यक्तियों की कुछ उपयोगकर्ता थर्ड पार्टी साइट पर आइटम्स बेचने के लिए व्यक्तिगत व्यापार फंक्शन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इन दुरुपयोग करने वाले थर्ड पार्टी साइट के साथ जुआ खेल गैम्बलिंग का बढ़ावा देता है।
टेंसेंट कंपनी का कहना है कि कुछ खिलाड़ी थर्ड पार्टी साइट का उपयोग करके आइटम्स बेचने के लिए व्यक्तिगत व्यापार फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो ये अनिवार्य रूप से सिस्टम का दुरुपयोग है। इसको रोकने के लिए कंपनी ने अस्थायी रूप से इस व्यक्तिगत ट्रेडिंग्स को बंद कर दिया है, जब तक कुछ बेहतर समाधान ना मिले तब तक। साथ में ये भी पुष्टि किया है कि पीसी पर पबजी को प्रभावित करने वाले हैकिंग्स और धोखा कार्यक्रम को विकसित करने और बेचने के लिए 15 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इस गेम के साथ एक हाइडन सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स, और ये ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आपकी पूरी जानकारी आसानी से हैक कर दिया जाता है। आपका लोकेशन, आपका रिकॉर्डेड साउंड, आपका फेस, यहाँ तक भी आपका सारा डाटा हैक कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको क्या लगता है, ये पॉपुलर गेम्स बंद करने से आपके लिए अच्छा या बुरा है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बताइएगा, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चले, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू।